Hello, people. What's up? I hope and I wish that all of you are in the best of your spirits and in the good health. Well, in today's session, I am over here, your Rakhi ma'am, to actually discuss how to overcome the exam stress, the fear, and the failure. Well, before I start the session, let me actually tell you one particular thing, the difference between the stress and the passion. What's the difference between stress and the passion? Listen to me very carefully. Working hard for something we don't care about is called stress. Fine. And working hard for something we love is known to be as passion. So, if you are aiming for your JEE mains examination, make it a passion, okay? Just don't see to it as a stress. Fine. Moving ahead, what you have to do is to hit the like button, subscribe the channel, and share this particular session right at this very moment. So yes, if I just talk about stress, to some extent, the stress is really very good. Why? Because it will actually keep you in check of the time, bring some sort of urgency in your preparation. Only small amount of a stress. But yes, if there is too much of a stress, of course, what is going to happen? If there is too much of the stress, the things are going to break out. Yes. So, this particular stress and the fear of failure is distracting your studies. Absolutely, I know, because I was also there once upon at your place. So yes, this stress and the fear of failure is basically distracting your studies, and that is what we need to avoid. But how, ma'am? How we can actually avoid it? Planned way of your lifestyle, planned way of your study curriculum. Yes, unplanned lifestyle is the root cause of exam stress. बिल्कुल. अभी ये पढ़ लेते हैं, अभी वो पढ़ लेते हैं, अभी हम मस्ती कर लेते हैं, अभी सोशल मीडिया पे सर्फ कर लेते हैं, अभी थोड़ा सो जाते हैं, चलो फिर पढ़ लेते हैं. Is this the planned way of your studies? No. So it's kind of the unplanned lifestyle. अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाकर आते हैं, अभी पिज्ज़ा खाते हैं, अभी बर्गर खाते हैं, मम्मा कुछ बना दो, मम्मा कुछ दे दो, यही चलता रहता है. तो स्टडीज़ कहाँ हैं आपकी? अनप्लैंड वे है. अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो कल कभी नहीं आता. यू एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स. Yes, absolutely. Whatever I'm saying is absolutely the right thing basically. Fine? Yes, absolutely. So, unplanned lifestyle is the root cause of your exam stress. Mind it. So, what you have to do is plan your studies. Absolutely. So, अगर आप अपनी studies को planned way में करेंगे, एक ट्रैक पे लेकर चलेंगे कि अभी फॉर 2 hours आई हैव टू स्टडी, देन आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 minutes, देन फिर मैं 2 घंटे के लिए मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ब्रेक लूंगा, फिर 2 घंटे के लिए केमिस्ट्री पढ़ूंगा. काइंड ऑफ लाइक दिस. सो ओनली डिसिप्लिन्ड वंस आर प्योरली फ्री इन लाइफ. अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि येस आई एम फ्री, मेरा काम हो चुका है, ठीक है, दैट मीन्स सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में करेक्ट आप 6 o'clock उठते हैं, 6 to 8 पढ़ाई करते हैं, 8 to 9 यू जस्ट डू योर ऑल द कोर्स ऑफ द डे. फाइन. देन हैड योर ब्रेकफास्ट, देन स्टडी फॉर सम टाइम. उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो प्लान्ड वे में आपने टिल 1 o'clock पढ़ा अच्छे से, तो आपको लगेगा नाउ आई एम सेटिस्फाइड और अभी के लिए आई नीड सम ब्रेक. सो 1-2 घंटा अगर आप सो भी जाते हैं या फिर आप कुछ अच्छा करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, सो it's kind of a free thing in your life, no? So only disciplined ones are purely free in the life, and you know what? Indisciplined are slaves to the moods and the passion. अभी मेरा मन पढ़ने का नहीं है, चल थोड़ी देर टीवी देखते हैं, चलो कैचअप करते हैं, थोड़ी पार्टी कर लेते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सर्फिंग कर लेते हैं. यस, शॉपिंग, या विंटर्स आर कमिंग, या शॉपिंग के लिए चलते हैं. ऑफ कोर्स ये आपके मूड्स पे डिपेंड कर रहा है. सो इनडिसिप्लिन्ड आर स्लेव्स टू द मूड्स एंड द पैशन. रिमेंबर दिस थिंग. तो अगर आप प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी स्टडीज को प्लान अप करेंगे, श्योरली ना तो कोई स्ट्रेस होगा, ना टेंशन होगा, ना फेयर ऑफ फेलियर होगा. ठीक है, क्लियर है. सो टेक केयर ऑफ वॉट यू कैन कंट्रोल. आपके कंट्रोल में क्या क्या है? आपके कंट्रोल में मैं बताती हूँ, प्रिपेरेशन है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन है, मॉक टेस्ट दीजिए. 3 घंटे का मॉक टेस्ट अगर आप एक दिन दे रहे हैं रेगुलरली,
पर डे आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सो यू वोंट बिलीव कि आप कितना सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग फील करेंगे कि येस आई डिड इट। उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरे एरर्स थे। यू वोंट बिलीव कितना आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी आप कितनी कंप्लीट करते जा रहे हैं कि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। इवन पर डे भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। यू वोंट बिलीव आजकल लोगों को इतना डिप्रेशन होता है एग्जाम्स का कि देयर हेयर स्टार्ट्स टू फॉल। अभी आपकी एज ही कितनी है, 17 और 18 ईयर्स, और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है। डिप्रेशन की आप मेडिसिन लेते हैं। वॉट इज दिस ऑल? इट्स द अनप्लान्ड वे ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ओके, सो डोंट डू दिस। बार बार हम हर सेशन में, मोटिवेशन सेशन में एक ही बात आपको कहते हैं कि प्लीज प्लान्ड वे में स्टडीज कीजिए, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला, कोई डिप्रेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड द शॉर्ट नोट्स you are actually preparing for. So if you have ticked all these particular boxes, what is going to happen? Leave the rest to the Almighty, to the higher powers. अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपर वे से, फिर टेंशन काहे का? नो टेंशन, कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, और किसी को देने का भी नहीं, एब्सोल्युटली। सो व्हाट इफ आई फेल? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं ये सारे काम कर लेता हूँ, डिसिप्लिन वे में स्टडीज कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे को फेलियर हाथ लगा, ठीक है, फिर भी अगर मुझे फेलियर हाथ लगा, मेरे सारे एफर्ट्स पानी में चले गए, तो क्या? यार ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सो द प्रिपरेशन इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर इन द लाइफ एंड दिस इज नॉट द एंड. This is actually not the end. And yes, you should be proud of how hard you have tried for your goal. आपने बिल्कुल भी कोई मेहनत बाकी नहीं छोड़ी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. You haven't left any stone unturned. So चिंता नहीं करना. You will be surely getting the results of your hard work very soon. Need not to worry about it. Fine. So today, if I refuse to stress myself out about the things I cannot control or change, okay, then there will be something in you thinking ki yes, I have done something good for me. Fine, that's absolutely right. Yes ma'am, absolutely. So yeah, it's okay to start over. It's basically okay to rebuild and it's okay to be scared. ठीक है, डरना सही है, लेकिन इतना भी डरना, इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेशन लेना जरूरी नहीं है कि that is actually demotivating you, that is taking into the depression state. No, don't do it. Don't ever do it. Don't ever do it. So in times of great stress or adversity, it's always best to keep busy. It's always to keep yourself busy, to plow your anger and your energy into something positive. Fine. So do it, my dear students, and yeah, have gratitude for all the blessings you have. Fine. So this was all from my side for this particular session. Hope कि अब आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, फियर ऑफ फेलियर नहीं होगा. जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, पोमोडोरो टेक्निक को प्लीज आप अपनी लाइफ साइकिल में लेके आइए, अपने स्टडी के करिकुलम में लेके आइए. पोमोडोरो टेक्निक, अगर आपको जानना है कि what you mean by Pomodoro technique, then I have made a short video on it. Go and watch it, that what is Pomodoro technique. ये आपकी स्टडीज को स्ट्रीमलाइन कर देगी. एंड यकीन मानिए 101% आपको फर्स्ट डे ही इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे. फाइन. सो बाय बाय एंड टेक केयर.